اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بلکہ بستی کے حکمراں اور سردار کی حیثیت سے عرصہ ہوا کہ میں نے یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے اور اب میری نظر میں ساری دنیا ہیچ ہے۔ گاؤت نے افسردگی کے ساتھ جواب دیا۔ پھر وہ اچانک بولا، میں نے تمہیں اپنی اتنی لمبی چوڑی داستان سنائی لیکن تم سے تمہارا نام تک نہیں پوچھا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ دراصل آج تقریباً 8 سال کے بعد میں نے کسی انسان سے گفتگو کی ہے اور میں گفتگو کے آداب بھی فراموش کر چکا ہوں۔ ابھی گاؤت اپنی بات بھی ختم نہیں کر پایا تھا کہ ایک طرف سے خو خو کی تیز آوازیں آنے لگی۔ ایک بپھرا ہوا موٹا تازہ سور، بےحد کبھی جنگلی سور، اپنی تھوتنی کو آگے کیے ہوئے ایک طرف سے بڑی تیزی کے ساتھ ہماری سمت بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ گاؤت نے فوراً سنک اپنے منہ سے لگا لیا اور زور زور سے اسے پھونکنے لگا، لیکن میں نے سنک اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بری طرح چیخا۔ جلدی سے ایک طرف ہو جاؤ۔ سور تیزی کے ساتھ مڑ نہیں سکتا۔ وہ کچھ دور آگے جا کر مڑے گا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر سور کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن میں اسے ایک طرف دھکیل کر سور کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور عین اس وقت سور میرے بالکل قریب آ گیا۔ جلدی سے ایک طرف ہٹو، یہ بہت خطرناک جانور ہے۔ گاؤت پوری قوت سے چلایا لیکن اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا کیونکہ حیرت نے اس کی زبان کو گم کر دیا تھا۔ بھاری بھرکم سور تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور میں نے تھوڑا سا آگے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ سور پوری قوت کے ساتھ میرے ہاتھوں سے ٹکرایا اور اس کے منہ سے ایک بھیانک آواز نکلی۔ وہ زمین پر گر گیا تھا۔ میں نے زور سے اس کو ایک لات ماری اور اس کا منہ وزنی جسم سمیت گیند کی طرف فضا میں اچھلا اور ایک قریبی چٹان پر گر کر خون میں نہا گیا۔ بے یقینی اور حیرت کے مارے گاؤت کی آنکھیں جیسے ابلی پڑی جا رہی تھی۔ تم کون ہو میرے دوست؟ تمہارے اندر توانائی کا یہ ذخیرہ کہاں سے آ گیا؟ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا اور یہ سور اتنی قوت کے ساتھ مجھ سے ٹکراتا تو میرے جسم کی کئی ہڈیاں سلامت نہ رہتی۔ تمہارے اندر اتنی قوت کہاں سے آ گئی؟ تم نے اسے کیسے چوہے کی طرح اچھال دیا؟ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، میں نے بات ٹالنے کی غرض سے کہا۔ ہاں تو تم میرا نام پوچھ رہے تھے۔ دراصل میرا کوئی نام نہیں، تم اپنی مرضی سے میرا کوئی بھی نام رکھ دو۔ عجیب آدمی ہو یار، کبھی کہتے ہو میرا کوئی وطن نہیں، کبھی کہتے ہو میرا کوئی نام نہیں۔ آخر نام کے بغیر کسی انسان کی شناخت کیسے ہو سکتی ہے؟ چلو تم ہی میری کوئی شناخت مقرر کر لو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم میرا جو بھی نام رکھ لو گے مجھے منظور ہوگا۔ میرے دادا کا نام شاول تھا، گاؤت نے کہا، اور لوگ بتاتے ہیں کہ وہ غیر معمولی طور پر بہادر اور قوی تھا، شاید تمہاری طرح۔ جب میں نوجوان تھا تو اکثر سوچتا تھا کہ جب میری شادی ہوگی اور میرا پہلا بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام اپنے دادا کے نام پر شاول رکھوں گا۔ میرا یہ خواب تو پورا نہ ہو سکا، لیکن اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہیں شاول کے نام سے پکاروں؟ ضرور، میں نے جواب دیا، مجھے تمہارا دیا ہوا نام پسند ہے۔ تو پروفیسر اس طرح میں شاول بن گیا۔ شہزور پیچھے رہ گیا تھا، اکیاس اس سے بھی پیچھے رہ گیا تھا، اور میرے ہزاروں ناموں کی طرح یہ نام بھی ماضی کے نہا خانوں میں دفن ہو گئے، اور اب میں ایک نئی شخصیت اختیار کر کے شاول بن چکا تھا۔ تم اس جنگل میں کب تک قیام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ گاؤت نے مجھ سے پوچھا۔ یقیناً یہ تمہاری منزل تو نہیں ہے؟ میری کوئی منزل نہیں، اور ہر جگہ میری منزل ہے، میں نے جواب دیا۔ اب جب کہ تم مجھے مل گئے ہو تو اس وقت تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک کہ تمہیں لاتاک کی سرداری واپس نہ دلا دوں۔ مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے اور تمہاری مدد کر کے مجھے بے انتہا خوشی ہوگی۔ میں یہ مانتا ہوں کہ تم واقعی بہت بہادر ہو، اور ابھی تم نے میرے سامنے اپنی بہادری کا ایک عمدہ مظاہرہ بھی کیا، لیکن میرے دوست کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اور تم، ہم دونوں آدمی گراٹس اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کر لیں گے اور انہیں مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ گاؤت نے پوچھا۔ میں نے نا امید اور مایوس ہونا نہیں سیکھا میرے دوست، میں نے کہا۔ خیر اس بات کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تالاک میں یہ بات کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ گاؤت کی پشت پر پیدائشی طور پر ایک ستارے کا نشان موجود ہے؟ بستی کی بیشتر آبادی اس بات سے واقف ہے کیونکہ میری پیدائش کے بعد نجومیوں اور سیانوں نے اس نشان کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا تھا، اور ساری بستی والوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ سردار کے گھر پیدا ہونے والا بیٹا بڑا خوش نصیب ثابت ہوگا۔ خوش نصیب؟ گاؤت نے برا زمو بنایا۔ ٹھیک ہے گاؤت،
मैंने कहा, अभी चंद रोज तक तो मैं तुम्हारे साथ इसी जगह कयाम करूंगा और इस अजीबो गरीब जिंदगी से लुत्फ अंदोज होऊंगा जो तुम गुजार रहे हो। इसके बाद मैं और तुम दोनों तालाक चलेंगे और वहां चलकर हालात का जायजा लेंगे। तुम अगर अपने मौजूदा उलिये में तालाक में दाखिल हो गए तो कोई शख्स भी तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। हत्ता कि अगर तुम्हारी अम्मा शिराना भी अभी तक जिंदा होगी तो तुम्हें वो भी नहीं पहचान सकेगी। एक बार तालाक में दाखिल हो जाने के बाद मैं और तुम कोई मंसूबा बनाएंगे। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मुझे अब इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं रही है और ना ही मैं किसी मनसब का ख्वाहा हूं। अलबत्ता तुम अगर लाताक की सैर करने के लिए वहां जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर ले चलूंगा। वैसे वादी लाताक है वाकई देखने की चीज। तुम्हें वहां की सैर कराने के बाद मैं वापस अपने गोशाए तन्हाई में लौट आऊंगा। चुनाचे प्रोफेसर मैं तकरीबन 7-8 दिन तक गाउत के साथ उस जंगल में रहा। मुअल्लक झोपड़ी में रातें गुजारने का मेरी जिंदगी में यह पहला तजर्बा था और मैं इस तजर्बे से बहुत लुत्फ अंदोज हुआ। रात को जब खूब तेज हवा चलती और दरख्तों की मोटी मोटी शाखें आहिस्ता आहिस्ता हिलती तो इनके ऊपर कायम झोपड़ी भी होले होले लर्जने लगती और ऐसा मालूम होता गोया हम लोग झूले में बैठे हुए हैं। गाउत और खान ने ये झोपड़ी इतनी उम्दगी से बनाई थी कि एक बार इसका दरवाजा बंद हो जाने के बाद किसी सांप तक के अंदर दाखिल होने की गुंजाइश नहीं थी। झोपड़ी में रात गुजारने वाले हर तरह से महफूज थे। तख्तों के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी बारीक छुरियां बनाई गई थीं जिनसे ताज़ा हवा अंदर आती थी। इन दिनों के दौरान हम शिकार का ताज़ा गोश्त खाते रहे और अब मुझे मालूम हुआ कि इस झोपड़ी के करीब ही ठंडे पानी का एक और चश्मा भी मौजूद है। यही वजह थी कि गाउत मुझे पहले वाले चश्मे पर 2 दिन तक नजर नहीं आया था। बिलाखिर एक दिन अलल सबा हम लोग जंगल से रवाना हो गए। गाउत ने बस्ती लाताक की समत का तयन किया और हम उस तरफ रवाना हो गए। हमारा सफर तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रहा और तब कहीं जाकर जंगल से घनेपन में कमी आई। यहाँ तक कि जंगल बिल्कुल खत्म हो गया और छोटी छोटी झाड़ियों, टीलों और खुले मैदान का सिलसिला शुरू हो गया। गाउद ने मुझे बताया कि अगर हम दिन भर सफर करें तो इस तवील मैदान को पार कर लेंगे और उसके बाद लाताक की बस्ती हमारी नजरों के सामने होगी। गाउद ने अभी इतना ही कहा था कि सामने से कुछ लोग आते नजर आए। वो तादाद में 3 थे और शायद किसी फातेह फौज के सिपाही थे या लुटेरे थे। वो तीनों सफेद बुराक घोड़ों पर सवार थे, तमाम हथियारों से लैस। उनके पास गठड़ियों में बंधा हुआ बहुत सा सामान भी मौजूद था। वो अचानक ही हमारे सामने आ गए थे और उन्होंने हमें घेरे में ले लिया। तीनों ने तलवारें सोंत ली थी। तुम लोग कौन हो और इस वीराने में क्या करने निकले हो? उनमें से एक ने कड़क कर पूछा। हम आवारागर्द मुसाफिर हैं, मैंने जवाब दिया। बस्ती बस्ती करिया करिया घूमते फिरते हैं, यही हमारा मशगला है और यही हमारी जिंदगी है, लेकिन हम ऐसी जिंदगी के कायल नहीं हैं। उस शख्स ने सफाकाना लहजा में कहा। उसकी आंखों से शकावत टपक रही थी। मेरा ख्याल है कि तुम लोग जरूर कोई जासूस और बहरूपी हो। बहरहाल मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। और उसने अचानक अपनी तलवार मेरे सर पर मारनी चाहिए। दूसरे लम्हे मैंने मां तलवार को उसे घोड़े से घसीट कर उसके दूसरे साथी की तरफ उछाल दिया। इन दोनों की तलवारें एक दूसरे के जिस्म में घुस गई। इतने में गाउत ने अपनी तलवार खींच ली थी। तीसरा आदमी घोड़ा पीछे करके गाउत पर हमला आवर हुआ, लेकिन गाउत फुर्ती से वार बचा गया। मैंने उस तीसरे आदमी को घोड़े से घसीट कर उसका भी किस्सा पाक कर दिया। गाउत तस्वीरें हैरत बना मुझे देख रहा था। चलो जल्दी करो, मैंने गाउत की हैरत को नजरअंदाज करते हुए कहा। हम दोनों के जिस्मों पर पूरे लिबास नहीं है और कुदरत ने हमें एक अच्छा मौका फराम कर दिया है। इनके लिबास उतार कर पहनो, इनके घोड़ों पर कब्जा करो। हम दोनों ने इनके लिबास पहन लिए और सामान की कटड़ियों को खोल कर देखा। इनमें अंदर जरो जवाहिर भरे हुए थे। हम ये सारी चीजें संभाल कर घोड़ों पर सवार हो गए और लाताक की तरफ रवाना हो गए। अब हम घोड़ों पर सवार होने की वजह से जल्द ही लाताक पहुंचने वाले थे। दोपहर के कुछ देर बाद दूर से एक पहाड़ी सिलसिला नजर आने लगा। इस वादी का नाम वादी लाताक है, गाउत ने कहा, और इसी में लाताक की बस्ती आबाद है। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम इस पहाड़ी सिलसिले के करीब पहुंच गए और एक कुशादा दर्रे से अंदर दाखिल हुए। ये एक बहुत वसी व अरीज वादी थी। चारों तरफ बुलंद पहाड़ सर उठाए हुए खड़े थे और बीच में बस्ती थी। अब हम वादी लाताक में दाखिल हो गए हैं, गाउत ने कहा। उसकी आवाज फरते जज्बात से कांप रही थी। 8 साल, हाँ, पूरे 8 साल के बाद मेरी निगाहें इस जाने पहचाने मंजर को देख रही हैं। शाउल, अगर तुम न मिलते तो शायद मैं जिंदगी भर इस मंजर को दोबारा न देख पाता। और यकीन करो कि अब तुम्हें यहां से जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, मैंने कहा। हम लोग आगे बढ़ते गए। अब हम बस्ती के काफी करीब पहुंच गए थे। अचानक हमारी नजर एक छोटे से पहाड़ी टीले पर पड़ी। इस पर एक बूढ़ा शख्स
जो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था, बैठा हुआ हवंकों की तरह हमारी तरफ देख रहा था। जैसे ही हम उसके नजदीक पहुंचे, वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और दीवानों के अंदाज में हाथ हिला हिला कर कहने लगा, चले जाओ अजनबी मुसाफिरों, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। यह मौत की वादी है, यह मौत की बस्ती है। अगर जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ फौरन। मैं और गाउत एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। शायद ये कोई मकबूतुल हवास शख्स है। मैंने गाउत से कहा, पागल मैं नहीं, पागल तुम लोग हो जो जानबूझकर मौत के मुंह में घुस रहे हो। बूढ़े ने कहा और हमें घूरने लगा। गाउत उस नीम दीवाने बूढ़े को बड़े गौर से देख रहा था और मैं उस बूढ़े के अल्फाज पर गौर कर रहा था। वह बहुत खौफजदा नजर आता था और हमें भी खौफजदा करना चाहता था। आखिर इस बस्ती में ऐसी कौन सी बात थी जिसकी बिना पर वो इसे मौत की वादी करार दे रहा था और हमें वहां से भाग जाने का मशवरा दे रहा था। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो तुम अंदेशिक हो। अचानक गाउत ने बूढ़े से सवाल किया। बूढ़ा अचानक शदीद हैरानी के आलम में अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम इस बस्ती में बिल्कुल अजनबी हो। इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। क्या तुम्हारी खालाजाद बहन शेराना अभी जिंदा है? अगर जिंदा है तो क्या वो खैरियत से है? गाउत ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय कई नए सवालात पूछ डाले। मुकद्दस आग की कसम, बूढ़े ने कांपते हुए कहा, तुम दोनों मुझे किसी दूसरी दुनिया की मखलूक मालूम होते हो। तुम्हारा यह साथी सोने का बना हुआ है। इसके जिस्म का रंग सोने की तरह चमकदार है और इसके बाल सोने के तारों के लच्चों की मानी नजर आ रहे हैं। मैंने जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा और तुम हो कि मुझसे मेरे और मेरे खानदान वालों के बारे में इस तरह सवालात पूछ रहे हो कि जैसे तुम हम सबको जानते हो। आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हें भी जानता हूं और तुम्हारे खानदान वालों को भी। गाउत ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे अम्मा शेराना के बारे में बताओ, कैसी है वो? अम्मा शेराना? बूढ़े ने आंखें फाड़ कर कहा, तुमने उसे अम्मा क्यों कहा? जल्दी बताओ, क्या किस्सा है और तुम लोग कौन हो? गाउत ने चारों तरफ नजर डाली। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अपना इत्मीनान कर लेने के बाद उसने अंदेशिक से आहिस्ता से कहा, मैं गाउत हूं, क्या आप बकते हो? बूढ़ा गुस्से के साथ चिल्लाया, शुक्र करो कि यहाँ आस पास कोई और मौजूद नहीं है जो तुम्हारी ये बात सुन सकता, वरना ये अल्फाज सुनने के बाद कोई तुम्हारी जान की जमानत नहीं दे सकता था। तुम्हें नहीं मालूम गाउत इस बस्ती का सरदार है और इस वक्त अपने महल में आराम कर रहा होगा। वो गाउत नहीं है अंदेशिक, गाउत ने जवाब दिया, वो ग्राट्स है। ग्राट्स? गाउत का जुड़वा भाई। बूढ़े के लहजे में अबहरत के सिवा बेयकीनी का अंसर भी शामिल था, मगर गाउत का वली अहद नामजद हो जाने के बाद ग्राट्स गायब हो गया था। इसके बाद से आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। गाउत ने उसकी बहुत तलाश करवाई लेकिन इसका कहीं पता नहीं चला। शायद वो कहीं मर कब गया। मौजूदा हुक्मरान गाउत नहीं ग्राट्स है, गाउत ने कहा। वो झूठा और उसने गाउत का रूप धारा है। असली गाउत मैं हूं। अंदेशिक, क्या तुम्हें अम्मा शेराना ने मेरी असीरी और फरार के बारे में कुछ नहीं बताया था? नहीं, अंदेशिक ने जवाब दिया, मैं इन बातों के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि गाउत की तख्त नशीनी के बाद से आज तक मेरी शेराना से मुलाकात नहीं हुई, बल्कि किसी की भी शेराना से मुलाकात नहीं हुई। मगर क्यों? गाउत ने पूछा। अम्मा शेराना है कहाँ? गाउत ने उसे महल के एक दूर दराज गोशे में एक छोटी सी चार दीवारी में मुकय्यद कर रखा है। उसका कहना है कि शेराना अचानक किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई है जिसकी बिना पर उसका दूसरे इंसानों से अलग रहना खुद उसके लिए और दूसरे इंसानों के लिए जरूरी है। इस दिन के बाद से आज तक किसी ने शेराना को नहीं देखा। अलबत्ता महल के मुलाजमों से ये बात मालूम होती रहती है कि वो जिंदा है और चार दीवारी में मुकय्यद है। एक मुलाजिम रोजाना उसे 3 वक्त खाना पहुंचा देता है। हद तो यह है कि शेराना को अपने बेटी की मौत के बारे में भी इल्म नहीं है। शायद आज तक वो इस बात से नावाकिफ है कि उसका अकलौता बेटा मारा जा चुका है। अंदेशिक ने कहा, क्या अम्मा शेराना का बेटा भी मारा गया? गाउत ने ताज्जुब अमेज लहजे में पूछा। हाँ, अंदेशिक ने कहा। गाउत के तख्त नशीनी के चंद रोज बाद किसी ने उसे हलाक करके उसकी लाश को पहाड़ के एक गार में डाल दिया था। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद एक चरवाहे को जो अपनी भेड़ें चराते हुए दूर तक निकल गया था, उसकी लाश नजर आई जिसका बड़ा हिस्सा जंगली जानवर खा चुके थे। चरवाहे ने उसके लिबास के बचे कुछ टुकड़ों की मदद से उसकी लाश को पहचाना। मगर तुम मुझसे ही सारे सवालात पूछे जा रहे हो, अपनी असलियत के बारे में कुछ नहीं बताते। सच से बताओ, तुम कौन हो? इस बस्ती से तुम्हारा क्या ताल्लुक है और तुम यहाँ के लोगों के बारे में किस तरह जानते हो? एक बात बताओ अंदेशिक, गाउत ने उससे पूछा। तुम्हें यकीनन ये बात मालूम होगी कि गाउत और ग्राट्स अगरचे दोनों बिल्कुल हम शक्ल थे, लेकिन इसके बावजूद इनमें एक बहुत बड़ा फर्क मौजूद था। हाँ, मुझे मालूम है, अंदेशिक ने जवाब दिया।
वो दोनों मेरे सामने पैदा हुए हैं, और सिर्फ मुझे ही क्या, इस वक्त मौजूदा बस्ती के सारे लोगों को ये बात मालूम थी कि गाउत की पुश्त पर पैदाइशी तौर पर सितारे का एक निशान मौजूद है, जबकि ग्राड्स की पुश्त पर ऐसा कोई निशान मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, गाउत ने जवाब दिया। तो फिर ये देखो। और इसके साथ ही गाउत ने अपने जिस्म का बालाई लिबास उतार कर अपनी बरहना पुश्त अंदेशिक के सामने कर दी। अंदेशिक ने बड़े गौर से उसकी पुश्त पर मौजूद सितारे के निशान को देखा और फिर देखता ही रह गया। उसकी जुबान जैसे गुंग होकर रह गई थी। गाउत ने लिबास दोबारा नीचे कर लिया और अंदेशिक की तरफ देखा। अंदेशिक का जिस्म फरते जज्बात से कांप रहा था। वह गाउत के कदमों में गिर पड़ा और अपनी आंखों को उसके पैरों से मसलते हुए बेताबाना अंदाज में कहने लगा, हाँ तुम गाउत हो, मैं गवाही देता हूं कि तुम यकीनन गाउत हो, और तुम्हारे नाम से जो हुकूमत कर रहा है वो नकली गाउत है, वो ग्राड्स है। गाउत ने उसे उठाकर सीधा किया और दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गए। तभी तो सारी बस्ती वाले इस बात से हैरान परेशान हैं कि आखिर गाउत को क्या हो गया। जब तक वो हुक्मरान नहीं बना था उस वक्त वो एक नेक, रहम दिल, लोगों से मोहब्बत करने वाला और इनकी इज्जत करने वाला शख्स था, लेकिन अपने बाप के मरने पर तख्त नशीं होते ही उसके अंदाज बिल्कुल बदल गए। वह बिल्कुल तुंदखू, जालिम और सफाक बन गया और उसने लोगों पर बेइंतहा जुल्म ढाने शुरू कर दिए। वो सब लोग जो उससे मोहब्बत करते थे उससे नफरत करने लगे। अब यह राज खुला कि वो सिरे से गाउत है ही नहीं, वो तो ग्राड्स है जिसे लोग हमेशा नापसंद करते थे और सदा का जालिम और खूनखार है। अब बस्ती वालों को इसके जुल्म से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। मैंने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। अंदेशिक ने मुझे गौर से देखा और गाउत की तरफ देखकर मुखातिब होकर बोला, ये कौन शख्स है? तुमने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये मेरा दोस्त शाहुल है और बेइंतहा बहादुर और जरी है। सिर्फ इसी के इसरार पर मैंने बस्ती का रुख किया, वरना मैं तो ये फैसला कर चुका था कि अब जिंदगी भर मेरे कदम इस बस्ती में दाखिल नहीं होंगे। मैं नहीं कह सकता कि तुम्हारा यहाँ आना ठीक है या नहीं, अंदेशिक ने पुरख्याल अंदाज में कहा। तुमसे तफसीली गुफ्तगू बाद में होगी। सबसे पहला मसला तो तुम्हें यहाँ के लोगों और बिलखुसूस कराट के सिपाहियों की नजरों से बचाना है। तुम दोनों जवान और सेहतमंद हो और ये वादी तुम जैसे जवानों के लिए मौत का पैगाम है। मुकद्दस आग का शुक्र अदा करो कि यहाँ दाखिल होने के बाद तुम्हारी मुलाकात सबसे पहले मुझसे हो गई और अभी तक किसी की नजर तुम पर नहीं पड़ी। अब यहाँ से फौरन चलो। बूढ़ा अंदेशिक बस्ती के अंदर जाने की बजाय हमें साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा और एक लंबा चक्कर काट कर हम एक ऐसे गार के पास पहुंच गए जो पहाड़ियों के काफी अंदर वाक़ था। एक कुशादा और साफ सुथरा गार था और हम दोनों को यह देखकर हैरत हुई कि इसमें बाकायदा एक बिस्तर भी मौजूद था। अंदेशिक हमारी हैरत को भांप गया और मुस्कुराते हुए बोला, आज से कुछ अरसा कबल से यह गार तारीख रातों को मेरा मस्कन था। मैंने एक खास मकसद के लिए इसे साफ किया था और रातों को यहाँ कयाम करता था। वो मकसद क्या था अंदेशिक, हमें नहीं बताओगे? गाउत ने उससे सवाल किया। बस्ती की एक बूढ़ी औरत ने, जिसके बारे में बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो जादू करनी है, मुझे एक अमल बताया था। यह अमल रात की तारीकी में तन्हाई में किया जाता था। उस ज़ईफ़ा का कहना था कि इस अमल से ग्राड्स की मौत वाक़ हो जाएगी या कम अज़ कम वो शदीद तौर पर बीमार हो जाएगा। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि मुझसे अमल में कोई कोताही हो गई हो या सिरे से ये अमल बेकार हो। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, नतीजा कुछ बरामद नहीं हुआ। तुम ग्राड्स की मौत के क्यों ख्वाहां हो? मैंने उससे सवाल किया। अब तुम दोनों इत्मीनान से बैठ जाओ, अंदेशिक ने कहा। मैं तुम्हें शुरू से सारी बात बताऊंगा। हम दोनों इस ठंडे गार में इत्मीनान से बिस्तर पर बैठ गए और फिर अंदेशिक ने हमें तफसील से बस्ती के हालात के बारे में बताया। जब से ग्राड्स ने, जिसे सारे लोग गाउत समझते हैं, इक़्तिदार संभाला है, उस दिन से इस बस्ती में नाहुस्तों के साए मंडला रहे हैं। अंदेशिक ने कहना शुरू किया, ग्राड्स नहायत जालिम और खौफनाक हुक्मरान है और उसने इस बस्ती को जहन्नुम बना दिया है। उसने ज़र कसीर सर्फ करके एक मजबूत और मुसल्लह फौज तैयार की, जिसकी ताकत के आगे बस्ती का कोई बाशिंदा दम नहीं मार सकता। इस फौज से सारे लोग सख्त खौफजदा हैं। ग्राड्स की इस फौज की एक नुमाया खसूसियत है कि यह बस्ती के लोगों को मुस्तकिल लूटते रहने के अलावा बस्ती के बाहर भी दूर दूर तक सरगर्मे अमल रहते हैं। मुसाफिरों पर हमला करके इनको मौत के घाट उतारते हैं और इनका मालो मता छीन लेते हैं। इसके अलावा ये फौज काफिले बराबर लूटती रहती है, इंसानों को मौत के घाट उतारती रहती है और घोड़े और मालो असबाब पर कब्जा कर लेती है। फौज क्या है, डाकुओं की एक जमीयत है जिसे ग्राड्स ने मनमानी कार्रवाइयां करने की खुली छूट दे रखी है और सिर्फ यही खूनखार फौज इसके इक़्तिदार का सतून है। वरना जहां तक वादी के लोगों का ताल्लुक है तो बच्चा बच्चा इसे नफरत करता है। आसपास की बस्तियों और आबादियों वाले भी ग्राड्स और उसकी फौज के इस तर्ज अमल से सख्त परेशान हैं। आज से 4 साल कबल शुमालिया की बस्ती वालों ने
एक बड़ी फौज के साथ हमारी वादी पर हमला किया, क्योंकि वो गरार्ड्स की फौजों के हाथों सख्त तंग आ चुके थे, जो आए दिन उनकी बस्ती वालों को लूटते रहते थे और शबे खून मारकर डाके डालते रहते थे। शुमालिया के हुक्मरान राबू कम ने पहले तो अपनी बस्ती के दानिशमंदों का एक वफद गरार्ड्स के पास भेजा और उसे शरीफाना तौर पर दरखास्त की कि वो अपने फौजी लुटेरों की हरकतों का सद्जवाब करने की कोशिश करे, लेकिन गरार्ड्स ने वफद में शामिल तमाम लोगों को कत्ल करा दिया। सिर्फ एक शख्स को बाकी छोड़ा और मकतूलों के सर उसके हवाले करके उसे वापस शुमालिया भेज दिया, ताकि वो वहां जाकर यह बता सके कि वफद के साथ क्या सलूक किया गया। इसके कुछ ही दिनों के बाद राबू कम ने अपनी फौज के साथ हमारी वादी पर चढ़ाई कर दी।